Welcome to my YouTube channel Ask Classes, and today we have to discuss about the circle chapter number 10 class 9th. And in the previous video I have to explain you about the circle and its terms. Now in this video I have to explain you about the theorem in chapter number 10. So first we start from first theorem. The first theorem is equal chords of a circle are equidistant distance from the center. ये थ्योरम हमें ये बताता है कि जो सर्किल होता है उसके जो कॉर्ड्स होते हैं, अगर इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, अगर एक सर्किल में हम बहुत सारे कॉर्ड्स बना सकते हैं, अगर उन सारे कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल होगी तो वो सारे के सारे कॉर्ड्स जो होते हैं उस सर्किल के सेंटर से सेम डिस्टेंस पर होते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हमारे पास कोई सर्किल है, सपोज हम कैसे थ्योरम को प्रूव करेंगे, फिर हम इसको कैसे यूज करेंगे और इसको हम मीनिंग क्या होता है ये सब मैं बताऊंगा आपको एक एक करके। अब देखिए, जैसे ये सर्किल है, सर्किल में सपोज सेंटर है, दिस इज योर सेंटर, एंड सपोज वी हैव टू कॉर्ड्स, वन इज ए बी and another is PQ. Then these two chords are equidistant from the center. If you draw the perpendicular from the center, suppose this point is M and this is the perpendicular line from the center to the chord PQ, and suppose this point is N. So what we have to given? We have to given, right here given, a circle with center O and two equal chords AB equal to PQ. Now what we want to prove? We want to prove that the distance of chord AB and the chord PQ from its center is equal. It means OM, that equal to ON. ये हमें प्रूफ करना है कि अगर किसी भी सर्किल में जो इक्वल कॉर्ड्स होते हैं वो उस सर्किल के सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होते हैं, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। तो आपको पता है किसी भी सर्किल में हम बहुत सारे कॉर्ड्स ड्रॉ करा सकते हैं, अगर वो सारे कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है तो आपको इस थ्योरम में ये प्रूफ करना है कि वो उसके सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। तो जैसे मैं हम क्या लिखेंगे, वी हैव टू राइट हियर a circle with center O and the two equal chords that is AB and equal to PQ. आपको गिवन है कि एक सर्किल है, इसमें दो कॉर्ड हैं AB और दूसरा कॉर्ड है PQ, और इन दोनों कॉर्ड्स की लेंथ क्या है, सेम है। नाउ वी वांट टू प्रूव दैट द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड AB फ्रॉम इट्स सेंटर मीन्स दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इज परपेंडिकुलर, ये जो डिस्टेंस होगी वो परपेंडिकुलर होगी, एंड ON that is perpendicular to PQ. So we want to prove that OM that is equal to ON. Now how can we prove? So we write here proof. First you join O to B and O to P. So write here join O to B and O to P. Then in triangle OBM,
ओ बी एम and triangle OPN. OPN. You have to see that OB that equal to OP. Why these two are equal? Because they are the radius of the circle. So we write here a radius of circle and angle OMB. OMB that equal to angle ONP. ONP is 90 degree. And we know that when we draw the perpendicular from the center to the chord, then it bisects the chords. It means MB that equal to PN, or we can say that AB that equal to PQ. It is given. So AB upon 2 that equal to PQ and upon 2. AB upon 2 means that is half of AB, it means MB, and half of PQ that means PN. So we write here PN. So in these two triangle OMB and triangle ONP, you can see that this side OB that equal to OP. आपको ये पता चल रहा है कि ये जो साइड है उसके इक्वल है, एंड एंगल M that equal to angle N because they are each 90 degree, and this length equal to this length. So we can say that these two triangle means triangle OMB is congruent to triangle ONP. By which criteria? This is your right angle, and the opposite side of right angle is hypotenuse and side. So we can say that these two triangle are congruent by RHS. So we write here by RHS. And if these two triangles are congruent by RHS, then other parts are equal. It means OM that equal to ON by CPCT. और यही हमें प्रूफ करना था बेटा कि किसी भी सर्किल में जो इक्वल कॉर्ड्स होते हैं वो उसके सेंटर से इक्वल डिस्टेंस होते हैं, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। ये तो प्रूफ हुआ कि कैसे इसका प्रूफ हम करते हैं। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, अब मैं इसका ज़रा मीनिंग आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए जिससे कि आपको पता रहे कि हम कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें बोला गया है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल और इक्वल डिस्टेंस, मतलब अगर आपके पास कोई सर्किल है, इस तरह से सर्किल है, तो आपको पता है कि सर्किल में हम बहुत सारे कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारे कॉर्ड्स बना सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर कॉर्ड बनाया AB या A1 B1 बोल देते हैं, दूसरा कॉर्ड मैंने बनाया A2 B2, तीसरा कॉर्ड बनाया मैंने A3 B3, और चौथा कॉर्ड मैंने बनाया A4 B4। अगर इन सब कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है, इसका मतलब है कि अगर A1 B1 दैट इक्वल टू A2 B2 दैट इक्वल टू A3 B3 दैट इक्वल टू A4 B4, तो ये सभी के सभी कॉर्ड्स उस सर्किल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होगी। मतलब अगर हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, तो अगर इसको M मान लें,
इसको n मान लें, इसको r मान लें और इसको t मान लें। तो ओ एम दैट इक्वल टू ओ एन दैट इक्वल टू ओ आर दैट इक्वल टू ओ टी। मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी सर्किल है और उस सर्किल में अगर आपने जितने भी कॉर्ड्स ड्रॉ किए हैं और अगर वो सभी कॉर्ड्स की लेंथ सेम है, तो वो सभी के सभी कॉर्ड्स उस सर्किल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। जैसे मैंने आपको बनाया, ये एक ही सर्किल में ऐसा हो सकता है। या फिर हमारे पास दो कॉन्ग्रुएंट सर्किल हो, अगर हमारे पास कॉन्ग्रुएंट सर्किल है, कॉन्ग्रुएंट सर्किल का मतलब होता है कि ऐसे दो सर्किल जिनका रेडियस क्या होता है, सेम होता है, उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट सर्किल बोलते हैं। तो अगर हम दो कॉन्ग्रुएंट सर्किल बनाएं, जैसे सपोज एक सर्किल हमने यहाँ पर बना दिया इस तरह से और एक सर्किल मैंने यहाँ बनाया, अब दोनों का रेडियस सेम है। अगर दोनों सर्किल का रेडियस सेम है तो उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट सर्किल बोलेंगे। अगर एक कॉर्ड मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया ए बी और एक कॉर्ड मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया पी क्यू, एंड सपोज ए बी दैट इक्वल टू पी क्यू। अगर ए बी और पी क्यू की लेंथ क्या है, सेम है, तो इनकी सेंटर से जो डिस्टेंस होगी, ओ वन मान लेते हैं, इसको ओ टू मान लेते हैं। तो ओ वन से ए बी की जो डिस्टेंस है, अगर इसको एम मान लें, और ओ टू से पी क्यू की जो डिस्टेंस है, अगर इसको हम एन मानते हैं, तो ओ वन एम दैट इक्वल टू ओ टू एन। इस थ्योरम का मतलब ये हो गया कि ये एक ही थ्योरम की बात कर रहा हूँ, इसी थ्योरम को मैं जनरलाइज कर रहा हूँ। मतलब है कि अगर हमारे पास दो कॉन्ग्रुएंट सर्किल हैं और उन दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्किल का मतलब होता है कि ऐसे दो या दो से ज़्यादा सर्किल जिनका रेडियस क्या होता है, सेम होता है, ऐसे सर्किल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट सर्किल बोलते हैं। तो अगर हम कॉन्ग्रुएंट सर्किल भी लेते हैं, जैसे ये सर्किल मैंने यहाँ पर लिया, एक सर्किल यहाँ पर लिया, और उन दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्किल में अगर हम दो कॉर्ड्स ड्रॉ करते हैं, जैसे पहले वाले सर्किल में मैंने ए बी कॉर्ड ड्रॉ किया और दूसरे वाले सर्किल में मैंने पी क्यू कॉर्ड ड्रॉ किया, अगर उन दोनों कॉर्ड्स की लेंथ सेम है तो वो दोनों सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। इसका मतलब ओ से लेके एम, ओ वन से लेके एम और ओ टू से लेके एन की जो डिस्टेंस होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी। तो ये इस थ्योरम का मतलब हुआ कि अगर आपको कहीं पर, जैसे मान लो कि अगर हमारे पास दो सर्किल है, एक सर्किल है यहाँ पर और एक सर्किल यहाँ पर है, इसका सेंटर ए है, इसका सेंटर बी है, और एक कॉर्ड है पी क्यू और एक कॉर्ड है यहाँ पर एम एन, और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्किल हैं। अगर आपसे बोला जाए कि इसमें पी क्यू दैट इक्वल टू एम एन है और ए से लेके पी क्यू की परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है, जैसे अगर बी ए पॉइंट, सपोज ये 4 सेंटीमीटर है, और आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड एम एन फ्रॉम द पॉइंट बी, तो आपका आंसर क्या होगा, इसकी भी डिस्टेंस सेम होगी क्योंकि ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट सर्किल हैं। सो अगर हम इसको टी मान लेते हैं, सो वी कैन राइट हियर बी टी दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम थ्योरम का अप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरम लेते हैं। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल सबटेन equal angle at the center।
अब ये थ्योरम हमें बताता है कि अगर हम कोई सर्किल लेते हैं और उस सर्किल में अगर जितने भी इक्वल कॉर्ड्स होते हैं वो सभी के सभी उसके सेंटर पर इक्वल एंगल बनाते हैं। सपोज वी हैव ए सर्किल हियर, अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये सर्किल है एंड दिस इज योर सेंटर, एंड इफ वी हैव टू chords which are equal, one is AB, another is PQ. So these two chords subtend equal angle at the center, means you have to given that a circle with center O and two equal chords that is AB equal to PQ. Now to prove what we want to prove, we want to prove that angle subtended by chord AB at the center, AB के द्वारा सेंटर पे एंगल सबटेंड होगा अगर हम इस कॉर्ड के जो दो एंड पॉइंट है उसको सेंटर से ज्वाइन कर दें, जैसे यहाँ पर ज्वाइन किया, देन दिस एंगल इज सबटेंडेड बाय कॉर्ड AB एट द सेंटर। और अगर हम P को और Q को ज्वाइन कर दें सेंटर से, then this angle is subtended by chord PQ at the center. Now we want to prove that angle AOB that equal to angle POQ. हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल AOB that equal to angle POQ. So how can we prove? Now in triangle AOB and triangle POQ, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल में देखें तो आपको मिलेगा OA दैट इक्वल टू OP, दे आर रेडियस, OB दैट इक्वल टू OQ, this is also a radius, and AB that equal to PQ, it is given. So triangle AOB is congruent to triangle POQ by which criteria? आप देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की जो तीनों साइड हैं वो इक्वल है, मीन्स ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड गिवन है कि इसके इक्वल है। सो दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस क्राइटेरिया। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल ट्रिपल एस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इसके अदर्स पार्ट भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। अदर्स पार्ट में क्या आएगा? अदर्स पार्ट में हम लेंगे कि एंगल AOB दैट इक्वल टू एंगल POQ बाई CPCT। तो ये तो बेटा इस थ्योरम का मतलब हुआ कि ये थ्योरम हमें ये बता रहा है कि अगर कोई भी सर्किल है और उस सर्किल में अगर कॉर्ड्स इक्वल है, मीन्स कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है, तो वो कॉर्ड सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। अब कॉर्ड पर इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे का मतलब हो गया कि जैसे मैंने यहाँ पर, अगर हम एक सर्किल में दो कॉर्ड्स बनाते हैं जिनकी लेंथ इक्वल है तो वो सेंटर पर एक इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। अगर हम दो से ज़्यादा बनाएंगे तभी वो इक्वल एंगल ही सबटेंड करेंगे। इसका मतलब इसको हम थोड़ा जनरलाइज करें तो इसका मीनिंग आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको पता चल सके कैसे हम प्रूफ करेंगे। अब हम थोड़ा इसको जनरलाइज करेंगे। जनरलाइज कैसे करेंगे? सपोज वी हैव ए सर्किल हियर, अगर हमारे पास सर्किल है और यहाँ पर दो कॉर्ड्स हैं AB
और एक कॉर्ड है पी क्यू। अगर इन दोनों कॉर्ड्स की लेंथ सेम है तो ये इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे, आपको पता है कि मीन्स अगर ये एंगल सपोज 50 डिग्री है और आपको पूछा जाए कि आप बताइए कि ये एंगल कितना होगा, तो आपका आंसर होगा कि ये भी कितना होगा 50 डिग्री। मतलब जब भी दो कॉर्ड्स इक्वल होंगे तो वो सर्किल के सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। अगर हमारे पास एक सर्किल में दो से ज़्यादा कॉर्ड्स इक्वल होते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक कॉर्ड ए बी है, दूसरा कॉर्ड पी क्यू है, तीसरा कॉर्ड सी डी है और चौथा कॉर्ड टी आर है और सर्किल का सेंटर यहाँ है, और इन सब कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल मीन्स ए बी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू सी डी इक्वल टू टी आर। और अगर हम इसको सेंटर से ज्वाइन करें मीन्स कॉर्ड ए बी के एंड्स पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करें, उसी तरह से पी क्यू के एंड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करें, उसी तरह से सी डी के एंड्स पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करें और टी आर के एंड्स पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करें, इस तरीके। तो ये इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे सेंटर पर, मीन्स ये जितने एंगल्स यहाँ पर बनेंगे वो सब के सब क्या होंगे इक्वल। अगर एक की लेंथ अगर हम मान लेते हैं कि एक 60 डिग्री का है तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री, ये भी कितना होगा 60 डिग्री, ये भी कितना होगा 60 डिग्री। और ऐसा सिर्फ एक ही सर्किल में नहीं होगा, अगर हमारे पास कॉन्ग्रुएंट सर्किल है, कॉन्ग्रुएंट सर्किल का मतलब है कि अगर हमारे पास मान लो कि दो सर्किल हैं जिनका रेडियस क्या है सेम है, जैसे एक सर्किल यहाँ है एक सर्किल यहाँ है, और सपोज एक सेंटर है और इसका सेंटर ये है, ये कॉन्ग्रुएंट सर्किल है, दे आर कॉन्ग्रुएंट सर्किल। If they are congruent circle, it means their radius are same. And suppose we have two chords here, one is AB and another is PQ. And if the length of AB that equal to PQ, then the angle subtended by the chord AB at the center C is angle ACB, this angle. And the angle subtended by the chord PQ at the center D, that is angle PDQ. And if the length of these two chords are equal, then the angles are also equal, means angle ACB that equal to angle PDQ. तो ये सिर्फ एक ट्रायंगल की बात नहीं है, ये कोई भी दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा उसमें भी ये थ्योरम अप्लाई होगा कि अगर हमारे पास दो कॉन्ग्रुएंट सर्किल हैं और उस कॉन्ग्रुएंट सर्किल में अगर हम कोई दो ऐसे कॉर्ड्स लेते हैं जिनकी लेंथ क्या होती है सेम होती है, तो वो सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करेंगे उनका मेजरमेंट भी क्या होगा सेम। तो उम्मीद है कि आपको ये दो थ्योरम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करिए और शेयर करिए जिससे कि और भी बच्चों का फ़ायदा हो सके। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।